अच्छा अच्छा। मनोहर सिंह भाटी सर, वॉइस क्लियर है? जी सर क्लियर है, मेरी क्लियर है सर? हाँ, यस आ रहा है आपका वॉइस। ओके सर। थैंक यू। संदीप जी।
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Mukesh sir, Yes, sir. voice. Okay. Very clear. So कुछ लोग ज्वाइन हो रहे हैं सर. हम अभी स्टार्ट करते हैं 2 मिनट से. कुछ और लोग ज्वाइन हो जाए देन हम स्टार्ट करते हैं.
Okay, so still planning, but to avoid delay, we will start our today's webinar. Uh, First of all, good morning, a warm good morning to all the NTA representatives, nodal officer coordinators, and agripreneurs, and my colleague, and other participants who have joined this webinar. On behalf of on behalf of Center of Agripreneurship Development, CAD, Manage Hyderabad, I, Vijay Patidar, consultant, ACABC, would like you uh, welcome you all to the webinar, to the Agripreneur webinar series under AgriClinic and Agribusiness Center scheme. Every month, managers conducting this webinar, this Agripreneur webinar series with NTIs and their trained and established agripreneurs under ACABC scheme. The objective of this webinar series to promote agripreneurship and highlight the experience and success, the experience of successful agripreneurs. It is a platform to create a cross-learning and awareness among the agripreneurs, NTS, faculties, scholars, and students across India. Today, we are organizing 54th webinar on exploring sustainable business opportunities through agri-input and goat farming. For this webinar, we have three speakers. Mr. Mukesh Sutar, Nodal Officer of NTI Shashwat Kshetri Vikas Pratishthan, Udaipur, Rajasthan. Mr. Manoj Singh Bhati from Uttam Farms Agri Clinic, Chandan, Jaisalmer, Rajasthan. And Mr. Sandeep Kumar Meena from Gotveda Livestock Farm, Dongri, Jobner, Jaipur, Rajasthan. I would also requesting to all the participants to make the webinar more interactive and fruitful by your active participation. With this, I would like to request to Mr. Mukesh Sutar, Nodal Officer, SSVP Udaipur, to share about your ATI, sir. Over to you, sir. Sir, please share Yeah, option I'm disease. giving you presentation role, sir. Sir, please access Mukesh Suthar program coordinator, sir. Okay. You can present it now, sir. Yes. So, sir. Yes, sir. You have shared your screen. आपने screen share किया है, sir? Yes, sir. I think it is visible to all. Yes. Sir, full screen not so. नहीं सर, एक्चुअली वो पीपीटी ओपन हुआ है आपका, फुल स्क्रीन में नहीं आया है। Yes, sir. Full screen में शो नहीं हो रहा है, सर. ठीक है सर, इसका जो आप इस टाइप से भी, Feed- क्योंकि ऑलरेडी वो शो हो रहा है, हमको पूरी स्लाइड दिख रहा है और फॉन्ट ज्यादा बड़ा यूज किया है आपने, देन वो इजीली विजिबल है।
ओके सर। सेकंड सर। यस सर। शो सर। हाँ सर, यस। you can zoom it a little bit. जो Okay. No. Little small. श्योर। This is okay. Okay. Please go ahead, sir. सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं कि मुझे एक मौका दिया गया सभी को प्रेजेंट करने का, मेरे एनटीए को प्रेजेंट करने का। तो सभी को राम राम खमागणी, गुड मॉर्निंग। एसएसवीपी एक नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो 2010 से लेके कंटिन्यू काम कर रहा है और ओवरऑल हमारी 3 ब्रांचें हैं, राजस्थान, गुजरात और पुणे, महाराष्ट्र। हमारा जो मिशन है वो टू एक्सेलरेट टू द वर्ल्ड ट्रांजिशन टूवर्ड टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है और हमारा जो विजन है एम्पावरिंग द सोसाइटी बाय एस्टेब्लिशिंग नेटवर्क ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंटरेक्शन सेंटर इन द एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। हम जो वर्क कर रहे हैं वो सस्टेनेबल फार्मिंग में करते हैं, स्किल डेवलपमेंट में काम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में काम करते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट काम करते हैं। हम 2002 से एक्टिव है और हम 2002 से कंटिन्यू एक्रीडेशन मैंने से हैं और हमारा एनटीआई राजस्थान में 2014 से कंटिन्यू चल रहा है और 2014 से लेके अभी तक हमने 39 प्रोग्राम किए हैं जिसमें हमने 1300 फार्मर स्टूडेंट वो ट्रेंड किए हैं और हमारा जो ब्रांचेस शो हो रही है वो उदयपुर राजस्थान, अमरेली गुजरात और एसएसवीपी पुणे जो है हमारा मेन ब्रांच है। हमारा जो हेड ऑफिस है वो संगमनेर है। हमारा जो स्ट्रक्चर है बोर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो हमारा बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, इसमें सीईओ है, इसमें हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है और प्रत्येक सेंटर पे एक नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है। साथ साथ में हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी है जिसमें अकाउंट हेड, एचआर और सपोर्टिंग स्टाफ है कंप्लीट। हमारे 21 का स्टाफ टोटल है जिसमें एसएसपी में कंप्लीट मॉनिटरिंग और पूरा देख रेख किया जाता है, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। मैं सक्सेस रेट मैं स्टैटिकल डाटा की बात करूं 2014 से लेके 2025 तक, अभी तक हमने राजस्थान की बात करूं तो 1316 लोग ट्रेन किए हैं जिसमें से 657 लोगों ने एग्री वेंचर स्टेब्लिश कर दिया। महाराष्ट्र पुणे की बात करूं तो 1534 लोगों ने ट्रेंड हो चुके हैं जिसमें से 815 लोग अपना एग्रीप्रेन्योर स्टार्ट कर चुके हैं। गुजरात की बात करूं तो इस टाइम गुजरात एक्टिव नहीं है हमारा, लेकिन अभी करंट डेट में बात करूं तो 837 लोग इसमें ट्रेंड हुए जिसमें से 385 एग्री वेंचर एस्टेब्लिश कर चुके हैं। एक स्टैटिकल डाटा की बात करूं, सक्सेस रेट की बात करूं तो ओवरऑल हमारा 2014 से लेके 2025 टिल डेट तक कंटिन्यू चल रहा है जिसमें हर सिर्फ के कोविड में हम थोड़ा डाउन आए थे, उसके बाद में कंटिन्यू हमारा सक्सेस रेट 50% एवरेज 50% चल रहा है और अभी करंट लास्ट ईयर का हमारा 279 राजस्थान में ट्रेंड हो चुके हैं स्टूडेंट जिसमें 98 स्टेब्लिश कर चुके हैं और अभी कंटिन्यू स्टेब्लिश हो रहे हैं। एग्री वेंचर की बात करूं तो दिस डाटा इज सो एग्री वेंचर मैक्सिमम फार्मर डेयरी, पोल्ट्री, फिगरी और गोटरी करते हैं हमारे राजस्थान के स्टूडेंट और एग्री इनपुट यूनिट, एग्रो सर्विस सेंटर जिसको हम खाद बीज की शॉप करते हैं, वो शॉप अधिकतर स्टूडेंट उसमें ही भागीदार रहते हैं, उसमें ही ज़्यादा करने का विचार रखते हैं। इसके साथ साथ में वेटरनरी क्लिनिक भी 5 लोगों ने किया है और वर्मी कंपोस्ट यूनिट और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी 11 लोगों ने किया है। साथ साथ में फिशरीज डेवलपमेंट भी उन्होंने किया है 9 लोगों ने और फार्म मशीनरी कस्टम हायरिंग सेंटर जिन्होंने अपना खुद के कस्टम हायरिंग सेंटर ओपन किया है जिसमें 13 लोग हैं और वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग किया उन्होंने 15 लोग और वैल्यू एडिशन कुछ अपने प्रोडक्ट बनाए जैसे अभी आज ही स्टूडेंट जिन्होंने उसमें भी इंक्लूड है 5 लोग और सोइल टेस्टिंग लैब ओपन स्थापित की है। एक छोटी लैब स्थापित की है उन्होंने, एग्रो सर्विस सेंटर के साथ साथ में अपना लैब स्थापित किया है, वो 5 लोग है और पर्ल फार्मिंग 2 लोग कर रहे हैं जिसमें एक गर्ल्स है एक बॉयज है और हॉर्टिकल्चर क्लिनिक 5 लोग कर रहे हैं।
This data success story of our student अलग-अलग एग्रोसर्विस सेंटर है, फार्म कंसल्टेंसी, वेजिटेबल ग्रीन हाउस ऑफ बुफेलो फार्मिंग, देसी काऊ, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी क्लिनिक, वेटरनरी क्लिनिक, अदर और एक्टिविटी। फील्ड विजिट प्रत्येक बैच को फील्ड विजिट करवाते हैं, जिसमें हम एग्रोसर्विस सेंटर वाले को साथ-साथ में हम यहाँ पे ये जो एग्री इनपुट कंपनी है उसके विजिट करवाते हैं, साथ में कृषि विज्ञान केंद्र का करवाते हैं। यहाँ पे राजस्थान में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय जो उदयपुर में है उसका सभी इकाइयों को विजिट करवाते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र का विजिट करवाते हैं, साथ साथ में यहाँ पे जो डेयरी का सरस डेयरी है उसका भी विजिट करवाते हैं, ताकि स्टूडेंट अपना खुद का व्यवसाय कैसे शुरू कर सकते हैं, उसको कैसे कौन सी मशीनें चाहिए, कैसे वो सेटअप कर सकता है, उसके बारे में उसको प्रैक्टिकल ज्ञान है। हमने अभी तक जो अचीवमेंट की बात करूं तो हमने 2 अचीवमेंट प्राप्त की है। फर्स्ट हमने 2017 में जो अवार्ड हुआ था उसमें 2 लोगों को हमारा फर्स्ट और सेकंड अवार्ड मिला था। उसके बाद में अभी जो 2022 में जो नेशनल बेस्ट अवार्ड एग्रीप्रेन्योर अवार्ड था उसमें हमारे 8 लोगों को अवार्ड मिला है जो राजस्थान के हैं, और एसएसपी पुणे में भी हमारे को नेशनल बेस्ट एनटी अवार्ड भी प्राप्त हुआ है 2022 में। हमारा जो की स्ट्रेंथ पॉइंट है वो डेडिकेटेड नोडल ऑफिसर का रहता है ज़्यादा, और स्टेट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमको सपोर्ट करता है। हमारा जो स्टाफ है वो हाई क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस फैकल्टी है हमारे पास, खासतौर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है वो हमारा डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, साथ में स्किल डेवलपमेंट के बारे में सब चीज़ बताते हैं, सॉफ्ट स्किल के बारे में उनको कंप्लीट वो जो एसबीआई के सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है वो उनको कंप्लीट क्लास करते हैं। साथ साथ में हमारा जो लोकेशन है वो उदयपुर में है, तो खासतौर से एक लोकेशन भी हमारे लिए बेस्ट रहता है, और हमारा जो स्टाफ है वो कंप्लीट महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और यहाँ पे अभी राजस्थान में न्यू एक स्टाफ आया है जिसका एग्री क्लिनिक एग्री सेंटर, जो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक एग्री क्लिनिक एग्री सेंटर ओपन किया राजस्थान सरकार ने, उसका स्टाफ भी हमारे को प्रोवाइड होता है। हमारे जो हम कैंडिडेट को मोबिलाइज करते हैं, न्यूज़ के माध्यम से करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से करते हैं, वीडियो के माध्यम से करते हैं, इंस्टा और सभी के माध्यम से हमने चैनल बना के सब कैंडिडेट को मोबिलाइज करते हैं, ताकि ये स्कीम सभी लोगों को पहुंच सके। और एग्रीकल्चर की जो न्यूज़ है हल्दर है, उसके बाद में किसान कहते हैं, उसके बारे में भी हम न्यूज़ में देते हैं, ताकि जो रियल एग्रीप्रेन्योर है उन तक ये जानकारी पहुंचे। हम सिलेक्शन प्रॉपर तरीके से, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, बैंकर और नाबार्ड, डीडीएम और आत्मा हमारे स्टाफ कंप्लीट स्टूडेंट का सीरियसली जो कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन करते हैं, और हम उसके ट्रेनिंग को इफेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, और इंडिविजुअल मॉनिटरिंग प्रत्येक स्टूडेंट का जो सिलेक्शन है वो इंडिविजुअली करते हैं, उनको फील्ड विजिट, मार्केट सर्वे, हैंड ऑन एक्सपीरियंस सपोर्ट करते हैं, साथ साथ में बैंकिंग लिटरेसी के बारे में कंप्लीट बैंक का स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक उनका सपोर्ट करते हैं, लोन से लेके सब्सिडी से लेके क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसको क्या क्या करना चाहिए, उसको डॉक्यूमेंट कार्रवाई क्या होना चाहिए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार हो सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग के बाद में हम उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट 1 ईयर सपोर्ट करते हैं। 1 ईयर के बाद में भी अगर स्टूडेंट हमसे बात करता है तो हम उनसे कंप्लीट सपोर्ट करते हैं, उसका कोई हम चार्ज नहीं लेते। हम प्रॉपर तरीके से उनको डीपीआर प्रिपेयर करके देते हैं, साथ में स्टूडेंट खुद अपने हाथ से डीपीआर बनाता है और हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं। हमारा जो लोकेशन है वो उदयपुर में है, हमारा कंप्लीट एड्रेस उदयपुर लोकेशन पे है, हमारी वेबसाइट sspindia.net है, और माई मेल ID mukesh20@gmail.com है। थैंक यू सो मच। और मैं बताना चाहूँगा अभी हमने इस एसएसपी के साथ साथ में हमारा जो एक एनजीओ है कैड फाउंडेशन, जो सेक्शन 8 के तहत कंपनी है, हमने अभी तक ये तो अपने एग्रीप्रेन्योर के लिए था, और हम साथ साथ में किसानों को भी ट्रेनिंग देते हैं। अभी नेशनल लाइवस्टॉक मिशन जो स्कीम आई थी उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। अभी तक हमने पूरे इंडिया में 1400 लोगों को ट्रेनिंग कर चुके हैं। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र सेंटरशिप और वूलर इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमने ट्रेनिंग करवा चुके हैं एमओयू के तहत। साथ में हमारा एमओयू कृषि विज्ञान केंद्र के साथ में भी है, हमारा महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के साथ में भी है। हमने अभी तक 1400 लोगों को ऑल इंडिया हम ट्रेनिंग कर चुके हैं, जिसमें हम फार्मर पे करता है 7,500 रुपये, जिसमें आपको उनका रहना खाना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रहता है, 7 डेज की ट्रेनिंग रहती है। अभी तक हमने 615 लोगों की अभी तक हमने 615 लोगों की ट्रेनिंग 615 लोगों को डीपीआर बना चुके हैं एनएलएम में, और उसमें 300 साढ़े 300 लोगों को सब्सिडी और उनका फार्म आगे दिल्ली तक पहुंच चुका है। तो हम गोट फार्मिंग, सीप फार्मिंग और रैबिट फार्मिंग में काम करते हैं। अभी हमने एक एआई ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं पूरे इंडिया के लिए। उसमें हमने एक डमी बनाया है,
एक्चुअली डमी जर्मनी से हम इंपोर्ट करें तो वो 25 लाख का डमी पड़ता है। तो हमने यहीं पे हमने एक डमी बनाया है एनिमल का, जो एआई प्रैक्टिकल उस पे करवा सके। साथ साथ में हम लाइव एनिमल पे भी ट्रेनिंग करवाएंगे, साथ में हम डमी एनिमल पे भी ट्रेनिंग करवाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जो एआई ट्रेनिंग करना चाहता है पशुपालन में, डेयरी फार्म में, डेयरी मैनेजमेंट के बारे में, तो अभी हमारी एआई ट्रेनिंग होगी, ऑल ओवर इंडिया के लिए होगी, लेकिन उसका फिक्स चार्ज रहेगा 11,000। उसमें 10 डेज की ट्रेनिंग रहेगी, कंप्लीट प्रैक्टिकल रहेगा। तो जो एआई की ट्रेनिंग करना चाहता है, एक्चुअली पहले जो ये ट्रेनिंग थी वो प्रोफेशनल में थी, अभी ये ट्रेनिंग स्किल में डाल दिया गया है। तो कोई भी स्टूडेंट या कोई फार्मर इस ट्रेनिंग को कर सकता है, कोई इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं रहती है। इसमें एज 18 साल से 60 साल तक आ सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुकेश सर। थैंक यू। जस्ट एआई क्योंकि शॉर्ट फॉर्म सर ने यूज किया है। जनरली आज हम एआई की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, बट सर जो बात करें वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात कर रहे हैं। कृत्रिम गर्भाधान सर। यस 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 यस। एनी क्वेश्चंस? अगर किसी का क्वेश्चन हो तो मुकेश सर इज हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। या चैट बॉक्स में एक है कोई हमारे पार्टिसिपेंट्स है महेंद्र कुमार रेगा जी, उनको ट्रेनिंग करना है सर आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। सर मेरा नंबर महेंद्र नोट जी कर सकते? आप ये मोबाइल नंबर और मेल आईडी आप नोट कर लीजिए, और हाँ वेबिनार के बाद में आप मुकेश सर से कांटेक्ट करके उसका और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो आप इन डिटेल्स जान सकते हैं उससे। ओके, थैंक यू मुकेश सर। थैंक यू सर। नाउ yeah now I would like to request to our another speakers, Mr. Manohar Singh Bhati ji from Uttam Farm Agri Clinic, Chandan, Jaisalmer, Rajasthan. Bhati sir? जी नमस्कार सर, आवाज़ आ जी रही है नमस्कार। मेरी? Yes, 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 sir. जी आप सभी को मेरा नमस्कार। क्षमा गणिसा। पीपीटी शो करूँ सर मैं? Yes, yes, sir. आप शेयर कर सकते हैं। संदीप जी प्लीज। ओके, संदीप जी कर रहे हैं क्या? जी संदीप जी, you can share now. जी सर, शो हो रही है? Yes, sir, Bhati sir. जी Visible है, please go ahead. अगेन सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मनोज सिंह भाटी है और मैं फर्म चलाता हूँ अपने उत्तम फार्म्स एग्री क्लिनिक के नाम से। अपने ये चानन जैसलमेर में है। अपने चानन जैसलमेर का एक वैसे जैसलमेर रेगिस्तान के लिए फेमस है, लेकिन कृषि का बेल्ट भी है जैसलमेर में, नहरी बेल्ट भी है, और एक भौगोलिक रूप से, जोग्राफिकल रूप से जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका बेल्ट भी है। तो अगर यहाँ पे काफ़ी लोग अपने एग्रीकल्चर बेल्ट से जुड़े हुए हैं, तो एक जीके का सवाल भी है अपने थार का घड़ा के नाम से है। उसका आंसर जो चानन है, मैं वहीं से हूँ। मैं एग्री इनपुट की दुकान चलाता हूँ उत्तम फार्म्स एग्री क्लिनिक के नाम से, जो 2019 से मैं चला रहा हूँ। उसके बाद में 2 साल ये चलाने के बाद में मैंने 2022 में ट्रेनिंग ली थी ACABC की। उस ट्रेनिंग के बाद में काफ़ी मेरे को फीडबैक मिला है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी मिला है वहाँ से, और उससे जो सीख के मैं आया हूँ उससे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, मैं किसानों की वेशभूषा में ही हूँ, साफा भी पहना हुआ है मेरे। तो उसका कारण यही है कि किसान जो हमसे जुड़ा हुआ होता है, जब वो देखता है ना कि भी सामने बैठा हुआ आदमी अपने बीच का ही है, तो ज़्यादा वो उससे कनेक्ट हो पाता है। संदीप जी नेक्स्ट प्लीज।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सर मैं अपनी बात वापस से शुरुआत से करता हूँ। जैसे हमें ये एग्री इनपुट का मेरे को आइडिया कैसे आया, किस तरीके से आया है, इसका कारण क्या है सर? अपना जो भारत का किसान है, ज़्यादातर छोटे और सीमांत किसान है। छोटे और सीमांत किसान होने की वजह से क्या होता है, वो टुकड़ा में बटे होते हैं। तो किसी भी दुकानदार के पास में जाते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो छोटी होती है। छोटी होती है तो किसी दुकानदार के पास हम जाते हैं, वो इतना हाई क्वांटिटी में कोई चीज़ नहीं मांगते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, दुकानदार की भी मजबूरी हो जाती है और उनकी तो मजबूरी है ही। तो जो चीज़ उनको रेट में मिलती है वो थोड़ी हाई रेट में मिल जाती है। उसी हाई रेट को अगर थोड़ा बल्क में किसान लेते हैं तो वो रेट को थोड़ा सा लो भी कर सकते हैं, दुकानदार भी कर सकता है और किसान को भी लो पड़ेगी। तो उससे किसानों को काफ़ी फायदा हो सकता है। तो शुरुआत में जो मैंने फर्म अपनी खोली थी, उत्तम एग्री क्लिनिक फार्म्स एग्री क्लिनिक की, उसके पीछे भी एक ये जो नाम एग्री क्लिनिक का रखने का कारण क्या था, वो कारण यही था सर, मैं कोई दुकान नहीं खोलना चाहता था। मैं इस तरीके से एक ऐसी जगह आना चाहता था जहाँ पे किसान को लगे कि यहाँ सिर्फ दवाइयाँ नहीं मिलती है, यहाँ एक सलाह भी मिलती है कि क्या चीज़ सही रहेगी, क्या चीज़ क्या मिट्टी के लिए सही रहेगी, क्या चीज़ खेत के लिए सही रहेगी। ये नहीं है कि किसान को ये लगे सिर्फ यहाँ पे दुकान पे दवाई बेचनी है, इसको तो निकालनी है, गोदाम खाली करना है। इसकी वजह से मैंने ये नाम रखा है उत्तम एग्री क्लिनिक। मेरा एक टैगलाइन भी है, बीच में फार्म्स रखने का कारण यही है, उत्तम फार्म्स एग्री क्लिनिक। और टैगलाइन है, बनाइए अपने फार्म को उत्तम। किस तरीके से अपन किस छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के अपने जो अपना खेत है, जो फार्म है, उसको उत्तम बना सकते हैं। इसका कारण भी यही है कि उत्तम फार्म्स एग्रीक्लिनिक। उसके बाद में फिर मुकेश सर से जो ट्रेनिंग ली है वो तो फिर उसके बाद में मैं बात करूंगा कि किस तरीके से वो एक उत्तम फार्म्स एग्रीक्लिनिक को बड़े लेवल पे किसानों के बीच में पहुंचने में फायदा मिला है, वो भी बहुत बड़ी बात है। शुरुआत में मैंने ये उत्तम फार्म्स एग्रीक्लिनिक के नाम से स्टार्ट किया था। फिर 2000 उसके बाद में 2000 2 साल बाद में 3 साल बाद में एक एफपीओ का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट का चल रहा है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो किसानों को एक तरह से जोड़ के, किसानों के लिए, किसानों का, किसानों के द्वारा। इसकी टैगलाइन है, किसानों की एक सामूहिक ताकत है। भी किसान, अगर मैंने आपको बात की थी, भविष्य अपने भारत का किसान है, छोटा और लघु सीमांत किसान ज़्यादा है। वही किसान अगर मिल के किसी दुकानदार को अप्रोच करते हैं तो दुकानदार को भी एक ताकत मिलती है और किसान को भी ताकत मिलती है अपनी जो रेट है उसको कम करवाने की। तो ये छोटा और लघु किसान सीमांत है, वो को ग्रुप बना के जो बनाते हैं वो एफपीओ है, किसान उत्पादक संगठन। और जब किसान उत्पादक संगठन है, वो जब दुकानदार को अप्रोच करता है तो दुकानदार को भी एक क्वांटिटी से माल लेने की, माल खरीदने की ताकत मिलती है। तो एफपीओ एक तरह से दुकानदार और किसान के बीच का माध्यम हो सकता है। हमारे बीच में क्या है कि खाद बीज की दो दुकानें हैं, वो किसान तक पहुंचने का सबसे पहला साधन है। किसी भी किसान को दवाई चाहिए होती है, खाद बीज चाहिए होता है, तो वो सीधा कृषि विभाग को टच नहीं कर सकता है। उसके लिए उसको अपने नज़दीकी जो माध्यम है उसको अप्रोच करना पड़ता है, और वो माध्यम होता है खाद बीज की दुकान। जो भी लोकल का आदमी होता है, जो भी पास में, चाहे वो सेठ कहो या कोई बनिया कहो, जो भी उसके नज़दीकी होता है, क्योंकि किसान की मजबूरी होती है, वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता है। और बनिए की हो चाहे साहूकार की, जिनकी ये होता है कि वो पास में होते हैं। तो एक तरह से खाद बीज की दुकानें वो उनका पहुंचने का सबसे बड़ा साधन होता है। उसी को लेके हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ
किसानों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कुछ अवेयरनेस के हिसाब से नई नई चीज़ें करें, और इसको किस तरीके से हम भारत में कृषि के बेल्ट में इसको तरीके से कर सकते हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज स्लाइड। इसमें हम अभी अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती के बारे में भी कर रहे हैं, किसानों को नई नई टेक्नोलॉजी का किस तरीके से जोड़ें इसको भी कर रहे हैं, उसके लिए किस तरीके से ट्रेनिंग करते हैं वो भी कर रहे हैं। ये अगर देखा जाए, जो हम एग्री इनपुट का जो पीछे चलिए सर संदीप जी, हाँ पीछे। अभी मैं अपनी बात करूँ कि किस खाद बीज की दुकान का क्या महत्व होता है किसान के लिए, क्योंकि हमारा एफपीयू था, उससे पहले एक सिंपल खाद बीज की दुकान थी। खाद बीज की दुकान एक तरह से अगर हम कहें प्रैक्टिकली रूप से देखें तो किसानों का पहला एक तरह से भरोसेमंद संपर्क बिंदु होता है। कोई भी चीज़ है, मान लो किसी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कोई पेशेंट है, मरीज है, उसको शुरुआत में कहाँ वो संपर्क करेगा, वो किसी डॉक्टर के पास ही जाएगा। बड़ा हॉस्पिटल नज़दीकी हो ना हो, बाकी संसाधन हो ना हो, डॉक्टर हो गई या एएनएम हो गई या नर्स हो गया, जो भी उसके पास में जो पहला संपर्क बिंदु है उसके पास जाएगा। वैसे ही किसानों के लिए जो पहला संपर्क बिंदु है वो है हमारा खाद बीज की दुकान। खाद बीज की दुकान पे पहुंचने के बाद अगर किसान को सही तरीके से सलाह मिलती है, सिर्फ ये नहीं कि ये एक हमारा कस्टमर है, ये नहीं, कस्टमर के हिसाब से नहीं, उसको अगर किसान को अपना समझ के कोई सलाह मिलती है तो वो एक बहुत बड़ी किसान के लिए बात होती है, और दुकानदार के लिए तो बात ये होती है कि वो उसके लिए एक बड़ा जो नेक्स्ट लेवल का लॉयल कस्टमर है वो तैयार होता है। स्लाइड प्लीज अगली संदीप जी। संदीप जी, हाँ सर, स्लाइड मैंने आगे कर दी है। शो नहीं हो रही है। अब वो दिख रहे दुकानदार और एफपीओ का तालमेल। नहीं, ये अगली शायद, ये तो पहली पहली स्लाइड है सर, ये पहली पहली स्लाइड है। एक बैक कीजिए संदीप जी, एक या दो स्लाइड बैक कीजिए शायद। बैक कर दिया ना सर। एफपीओ क्या है, खाद बीज दुकान का महत्व, स्लाइड अभी हाँ, ये विजिबल जो है। एफपीयू क्या है संदीप जी, इसको थोड़ा बड़ा कीजिए, फुल स्टॉप में कीजिए। एक बैक की बैक चाहिए बस। जी मनोहर जी, विजिबल अभी अभी। मुझे तो नहीं हो रही है संदीप खाद जी। बीज दुकान का महत्व, ये स्लाइड अभी विजिबल है संदीप जी। हाँ, ये विजिबल है, इसको अपन को एफपीयू वाले पे लाना है। एफपीओ पे आना है। जी, एफपीयू क्या है, FPO ये क्या जो है, बैक का ये है, आगे जा रहे हैं संदीप जी, पीछे आइए पीछे। सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, थर्ड। संदीप जी, जब भी आप स्लाइड में करें तो 2-3 सेकंड का टाइम दीजिए, जल्दी जल्दी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम तक वो स्लाइड चेंज होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, 2-3 सेकंड टाइम ले लेता है इंटरनेट। प्लीज सर, मनोहर सर। जी, मैं वो संदीप जी करते हैं तब तक मैं अपना कंटिन्यू रखता हूँ। यस। जिस तरीके से भाई एक जो दुकान है वो किसान का सबसे भरोसेमंद संपर्क बिंदु होता है, पहला संपर्क बिंदु होता है, जो नज़दीकी संपर्क बिंदु होता है, जिस पे किसान एक अपन लोकल तरीके से कहें तो अपनी लोकल भाषा में कनेक्ट कर सकता है। किसान के साथ में मजबूरी क्या होती है कि उसको ये लगता है कि भी कभी कभी किसी सूट बूट पहने हुए आदमी को देखता है तो वो उसका इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि उससे बात कर सके, उससे अपनी भाषा में कनेक्ट कर सके। तो अभी जैसे मैं जिस तरीके से बैठा हूँ, मेरा कारण बैठने का यही है कि ताकि किसान यहाँ पे आए तो सीखे कि भी अपना ही आदमी है, तो वो उसकी चीज़ की क्या चीज़ की उसकी सही रिक्वायरमेंट है अपनी भाषा में वो बता सके। ये अपन दुकान का कॉन्सेप्ट है। दुकान के कॉन्सेप्ट से ही थोड़ा सा अलग हटके उसको मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा
ऊपर लेवल का कॉन्सेप्ट है एफपीयू। एफपीयू है किसान उत्पादक संगठन, मतलब फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। एक किसानों का ही समूह है जहाँ पे एक से अधिक किसान मिलके अपनी बात को, अपनी रिक्वायरमेंट को किस मात्रा में चाहिए होती है वो सामने लाता है। सामने वो दुकानदार के पास में अप्रोच करता है कि साहब हमें एक आदमी को ये चाहिए, 100 आदमी को जितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, तो दुकानदार के लिए भी एक आसानी होती है कि वो उसको अप्रोच करके किसानों तक पहुंचाने की। उससे उसको भी सामूहिक बिक्री का फायदा होता है। संदीप जी आप सुन रहे? जी सर। अभी तक वहीं पे है संदीप जी? एफपीओ क्या है ये स्लाइड विजिबल है मनोज सर? मनोहर जी आगे करनी है क्या और? आगे का भी है तो स्लाइड 12 है ना एफपीओ सर जी? क्या है? मतलब 3 नंबर की स्लाइड पे हूँ मैं अभी। हाँ तो 3 को थोड़ा आप बड़ी बड़ी लेवल पे नहीं आ रहा है, बड़ी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। सर हाँ, फुल स्क्रीन में है या तो फुल स्क्रीन विजिबल है हमें। आपको विजिबल है सर? यस यस यस। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर एफपीयू मैं बात कर रहा हूँ। एफपीयू क्या है? एफपीयू एक तरह से सामूहिक खरीद का माध्यम है, किसानों के साथ में मिलके एक अप्रोच करने का। दुकानदार के लिए सामूहिक बिक्री का माध्यम है, जहाँ पे किसानों को ट्रेनिंग मिलती है, किसानों को जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब में अप्रोच मिलता है। तो एफपीयू एक तरह से किसान और दुकानदार के बीच का माध्यम है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। संदीप जी चौथे नंबर की स्लाइड करना। दुकानदार और एफपीओ का तालमेल। हाँ चौथे नंबर की। सर विनय सर आपको दिख रही है? यस यस यस। यहाँ पे नहीं दिख रही है सर मेरे को। सर आपका स्लाइड तो नहीं ओपन है, आपके यहाँ से हो सकता है दूसरा स्लाइड आपने मतलब पीपीटी ओपन कर रखा हो। अच्छा अच्छा। आ, दुकानदार और एफपीयू के बीच का तालमेल। हाँ जी जी। तो यहाँ पे जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि दुकानदार और किसान के बीच का जो माध्यम बिंदु है वो एफपीयू है। अगर इन दोनों का तालमेल होता है तो दुकानदार के लिए एक एग्री इनपुट का जो रिटेल होता है उसके लिए भी फायदा होता है और किसानों को भी फायदा होता है। वो किस तरीके से फायदा होता है? जिसमें एक एफपीयू जो किसानों का समूह है, अगर वो बल्क में दुकानदार को अप्रोच करे तो दुकानदार को भी रिक्वायरमेंट में आसानी रहती है, साथ में दुकानदार को रिटेल में बल्क में बेचने को आसानी होती है। जिससे क्या होता है, किसान को क्या लाभ मिलता है? एक तो किसान को असली माल मिलता है जो सस्ती कीमत पे मिलता है, और साथ में समय पर उपलब्ध हो जाता है। और इसमें एफपीयू का क्या लाभ होता है? जो उसको मार्केट का जो नेटवर्क है वो बढ़ता है, साथ में एक भरोसा कि सही कीमत मिल रही है, सही चीज मिल रही है और सही सदस्यों को मिल रही है। एक तरह से वो चीज भी मिलती है, तो दोनों के बीच में तालमेल है। वो तालमेल किसानों के लिए बहुत ही बड़ा एक सपोर्ट करता है, उनको उपज को बढ़ाने में भी बहुत सपोर्ट करता है और उनकी जो लागत है उसको भी कम करता है। इस तरीके से दुकानदार और एफपीयू का तालमेल जो है वो किसानों के लिए बहुत ही अच्छा तालमेल है। संदीप जी नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट है अपने ऑर्गेनिक खेती। अभी जो हमारे एफपीयू का और दुकानदार का जो तालमेल है, उसी तालमेल को आगे बढ़ाते हुए अगर हम अ, भविष्य के या वर्तमान के संदर्भ में देखें, तो जहाँ पे इतने हेल्थ इश्यू हो रहे हैं उनके बीच में ऑर्गेनिक खेती की जो अवधारणा है वो अवधारणा बहुत ही बढ़ रही है। और बाहर एक्सपोर्ट का जितना भी अभी हमारे जैसलमेर से अधिकतर क्यूमिन है वो एक्सपोर्ट जाता है, वो एक्सपोर्ट पूरा ऑर्गेनिक हिसाब से जाता है, उनके स्टैंडर्ड बहुत हाई होते हैं। तो हमें किसानों को अपने भविष्य की रिक्वायरमेंट को देखते हुए ऑर्गेनिक की तरफ मोड़ना होगा, ऑर्गेनिक खेती की तरफ मोड़ना होगा। ऑर्गेनिक खेती से क्या फायदा है? एक तो अपनी जो मिट्टी की उर्वरता है वो बनी रहती है, और साथ में हम अपनी हेल्थ तो बनती बनती है, साथ में जो मिट्टी है जो अपना फार्म है उसकी भी हेल्थ बनती है, क्योंकि उन्हें प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें मिलती है वो लंबे टाइम के लिए मिलती है, तो उनका असर उस पर भी बहुत लंबा होता है। इससे एक तो जो अपने उत्पादन हो रहा है वो रसायन रहित रहता है, उसमें कोई केमिकल का यूज नहीं होता है, साथ में सेहतमंद भी होता है। और जब ये उत्पादन निकलता है तो बाजार में इसकी जो रेट मिलती है किसान को वो हाई मिलती है।
क्योंकि वो एक्सपोर्ट होता है तो उसकी रेट भी बहुत ही हाई मिलती है। और इसके अलावा सरकार भी अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रही है, परंपरागत कृषि विकास योजना के नाम से अलग योजनाएं चला के प्राकृतिक खेती को, ऑर्गेनिक खेती को आगे सपोर्ट करने में कोशिश कर रही है। संदीप जी नेक्स्ट प्लीज। अब बात आती है कि ऑर्गेनिक खेती की रिक्वायरमेंट वर्ल्ड में बढ़ रही है, अपने हेल्थ के लिए भी बढ़ रही है, तो इसको कैसे शुरू करें। किसानों के बीच में ये काफ़ी बड़ा बिंदु होता है। अपने अभी जो एग्रीप्रेन्योर है उनके दिमाग में भी बड़ा इशू होता है कि भी इसको किस तरीके से शुरू करें। ऐसा तो है नहीं कि आज अपन ने पढ़ा और आज ही शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने का कॉन्सेप्ट है, एकदम से नहीं है। अपन कोई खेती अगर प्रणाली कर रहे हैं जिसमें अपन ने खाद बीज यूरिया डीएपी का यूज करके उसको बिल्कुल एक तरह से नशे के हालत में कर दिया है, तो उसको शुरुआत करने के लिए हमें धीरे धीरे कोशिश करनी पड़ेगी। धीरे धीरे रसायनों का कम उपयोग करना पड़ेगा। जो केमिकल खाद है उसकी जगह हमें ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक खाद के जो अलग माध्यम है, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, जीवामृत है, पंचगव्य है, इस तरीके से हमें जो ऑर्गेनिक खादों के अलग माध्यम है उनको यूज करना पड़ेगा। हमें एक तरह से अपने फसल चक्र को अपनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि कोई अगर एक फसल हमें बार बार अच्छी इनकम दे रही है तो हम उसी को अपनाएं, नहीं। हमें फसल चक्र में करना पड़ेगा। फसल को अलग अलग तरीके से बोना पड़ेगा, अलग अलग स्टेज के हिसाब से बोना पड़ेगा, ताकि जो जमीन में जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है उनकी एक तरह से पूरी कमी भी नहीं हो जाए और मिक्स में रहे। और इसके अलावा सरकार भी अपनी तरफ से जो ऑर्गेनिक किसान हैं उनको प्रमाण पत्र देने की अलग अलग कोशिश करती है, ताकि वही प्रमाण पत्र के आधार पे किसान की जो उत्पादन है, किसान की जो उपज है, वो आगे एक्सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आए। इसलिए काफ़ी एजेंसियां हैं जो सर्टिफिकेशन करती है, सरकार उनको किसानों तक पहुंचने की कोशिश करवाती है। नेक्स्ट प्लीज संदीप जी। इसमें अभी ऑर्गेनिक खेती में सरकार की तरफ से भी काफ़ी कोशिश चल रही है और किसान को भी इसमें काफ़ी प्रयास करने हैं। पर एफपीओ और दुकानदार मिलके भी किसानों की काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, किसानों को काफ़ी अवेयर कर सकते हैं, जिससे एट लास्ट में जो एक कृषि की जो उपज है वो बढ़ेगी, साथ साथ में किसानों की जो लागत है वो भी कम होगी। और जब वो कम होगी तो जो भारत पूरा खेती पे डिपेंड है, जैसे किसान जो एक बड़ा जनसंख्या है, उनकी जो रहन सहन है उसमें भी काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। इसमें किसान और एफपीओ दुकानदार मिलकर क्या कर सकते हैं, एक तो किसानों को ऑर्गेनिक, जहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है कोई ऑर्गेनिक करना भी चाहता है लेकिन उन्हें ऑर्गेनिक खाद बीज मिलता नहीं है, तो दुकानदार और एफपीओ मिलकर किसानों को ऑर्गेनिक खाद बीज उपलब्ध कराने में एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं, सही तरीके से ला सकते हैं। क्योंकि किसान की इतनी अप्रोच होती नहीं है कि कहाँ संपर्क करना है, कहाँ कॉन्टेक्ट करना है। एफपीओ दुकानदार एक बड़े लेवल पे होते हैं तो वो एक किसान की हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक खेती के फायदों के बारे में किसान को जागरूक करने के लिए ट्रेनिंग करवा सकते हैं, वेबिनार करवा सकते हैं। एग्रीप्रेन्योर है उनको इन चीज़ों में आगे लाने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। ऑर्गेनिक के जो किसान होते हैं, मेन समस्या उनको कहाँ आती है कि मान लो उसने ऑर्गेनिक खेती की, उपज भी तैयार कर ली, उत्पादन भी काफ़ी हो गया, पर वहाँ मार्केट के तक पहुँचने में इनकी अप्रोच इतनी होती नहीं है। वहाँ पे एफपीओ दुकानदार मिलकर किसान के लिए एक बहुत ही अच्छा फील्ड तैयार कर सकते हैं। वो एक तरह से सोशल मीडिया से जरिए या मार्केट लिंकेज के जरिए, मार्केटिंग के जरिए वो किसानों को एक ऑर्गेनिक का प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जहाँ पे वो अपनी उपज बेच सकते हैं। इसके अलावा एफपीओ और दुकानदार मिलकर किसानों को प्रोसेसिंग में, पैकेजिंग में, ब्रांडिंग में, इसमें भी मदद कर सकते हैं। किस तरीके से ये चीज़ें करके न्यू टेक्नोलॉजी अपना के अपन किसान को उपज को बढ़ाने के साथ साथ में किसान को मार्केटिंग में भी हेल्प कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि किसान को जो लास्ट में उत्पादन मिलता है उस उत्पादन की सही इनकम उसको जनरेट हो जाती है। जब वो इनकम किसान को जनरेट होगी तो एट लास्ट में वो एक दुकानदार के लिए भी फायदा है और एट लास्ट में वो एक एफपीओ के लिए भी फायदा है। दोनों को मिलके अगर वो किसान की हेल्प करेंगे उपज बढ़ाने में तो लास्ट में उनको ही फायदा मिलेगा। संदीप जी नेक्स्ट प्लीज।
अभी अभी हम काफ़ी सालों से इसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से किसान को आगे लाने में हेल्प करें। उसका अभी हम आपको एक एग्जांपल मैं अपने जैसलमेर का ही देता हूँ। जैसलमेर का जो जीरा है वो क्यूमिन बहुत फेमस है, बाहर एक्सपोर्ट के लिए भी जाता है काफ़ी। तो इसमें एक ऑर्गेनिक कैटेगरी होती है जीरे की, प्योर ऑर्गेनिक। उसमें किसान का हमने मिलके किसान से पूरा ऑर्गेनिक खेती के लिए तैयार करवाया है, खेत तैयार करवाया है। और पिछले 3 सालों से वो पूरा ऑर्गेनिक खेती कर रहा है। ऐसे हमारे काफ़ी किसान हैं, एफपीओ के मेंबर हैं। उससे अभी धरातल की मैं बात बताऊं, बाकी किसानों को अपना उपज को बेचने के लिए मंडी में संपर्क करना पड़ता है, बाकी सेठ साहूकारों से संपर्क करना पड़ता है। लेकिन ऑर्गेनिक खेती वाले किसान हमारे ऐसे हैं जिनकी उपज निकलती भी नहीं है, मतलब जैसे फसल है वो तैयार होती भी नहीं है बेचने के लिए, उससे पहले उनके बायर वहां तक पहुंच जाते हैं। यहाँ तक किसानों को ये भी ऑफर मिलते हैं कि निकालने का खर्चा और इसको बोरी में पैक करने का, पैकेजिंग का खर्चा हमारा रहेगा, आप रेट बोलो। एक तरह से किसान को इतना फायदा मिल जाता है कि उसकी तैयार फसल का निकाल मार्केट में आने से पहले उसको रेट मिल जाता है, उचित मूल्य मिल जाता है। तो किसान की टेंशन भी खत्म हो जाती है और किसान को सही तरीके से उसका रेट भी मिल जाता है। ये ऑर्गेनिक किसान की एक बहुत ही बड़ी मजबूती एक। मनोहर सिंह भाटी सर, जी, नेक्स्ट हेलो, संदीप जी नेक्स्ट। हाँ यस सर, ऑडिबल है आपका। ऑडिबल है जी। यस यस। तो मैंने अभी आपके साथ में ऑर्गेनिक किसानों की एक स्टोरी शेयर की है कि किस तरीके से ऑर्गेनिक खेती करने से किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य भी मिलता है और साथ साथ में किसान की टेंशन भी, जो फसल बेचने की है, फसल की रिक्वायरमेंट की है, वो भी खत्म हो जाती है। इसमें अभी इस पूरी सक्सेस स्टोरी में किसानों में एफपीओ और दुकानदार का जो तालमेल है, एफपीओ दुकानदार। मनोहर सर आपके साइड आई थिंक थोड़ा इंटरनेट इशू है, आप वीडियो ऑफ करके भी अपना सेशन डिलीवर कर सकते हैं। तरह से देखा जाए तो भविष्य है। अभी केमिकल की वजह से जो हमारे हेल्थ इशू आ रहे हैं, अलग अलग कैंसर वगैरह अलग अलग बीमारियां आ रही है, उनकी वजह से ऑर्गेनिक खेती का भविष्य बहुत। आई थिंक कंटिन्यू नेटवर्क इशू हो रहा है भाटी सर के साथ में। संदीप जी नेक्स्ट स्लाइड, कितना स्लाइड बाकी है? Okay, so means he is also about to complete the session. जी बैठी सर, जी। या आपका इंटरनेट इशू हो रहा है शायद, आपको पता नहीं मतलब पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है, क्योंकि वॉइस बीच बीच में ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो अभी हो रही है सर? ठीक है, आप अपना जी वीडियो ऑफ रखिए तो थोड़ा बैंडविड्थ कनेक्शन अच्छा रहेगा आपका। जी जी। यस, और थोड़ा फास्ट सर कंप्लीट कीजिए। जी मैं मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो बिल्कुल सर। Yeah. I would like to other participants, if you have any question, then well, Mr. Bhatti sir is here. सर मेरा ही एक क्वेश्चन है, आप कौन से एपीओ के साथ एसोसिएट है सर? जी उसका मैं जैसलमेर कृषि एफपीओ के नाम साथ में असिस्टेंट हूँ। जैसे मेरे बैक में अगर आपको दिख रहा है तो यस यस जैसलमेर कृषि
फेड। हाँ, जैसलमेर कृषि फेड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जी, जिसमें हमारे साथ में 1000 किसान जुड़े हुए हैं अभी। और फ्यूचर में हम प्लानिंग कर रहे हैं कि किसानों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ में सरकार को भी अप्रोच करें नई टेक्नोलॉजी के लिए, जो एट लास्ट में किसानों तक पहुंचे। ओके सर, जी अगर बात जैसे एफपीओ की बात करें कि आप एफपीओ मतलब एक साथ काफी किसानों के साथ कनेक्टेड है आप, जी है ना, एक ही वे से। सो इस एफपीओ का, एफपीओ से आपका एसोसिएट की जो अर्निंग है या आपके वेंचर के अर्निंग पर किस रेट से पड़ा है, इस टाइप से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इंडिविजुअल फार्मर्स को जाएंगे तो आई थिंक वो उतना इफेक्ट मतलब बहुत कम अर्निंग होगा, बट एफपीओ के जी थ्रू जाएंगे तो ज्यादा अर्निंग हम बढ़ा सकते हैं। तो लाइकवाइज कुछ इफेक्ट है, कुछ परसेंटेज या कुछ बता सकते हैं आप? नहीं, इसमें बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारे जो वेंचर का एपीयू के साथ में एसोसिएशन हुआ है, वो एसोसिएशन, मेरी आवाज़ आ रही है सर? यस यस यस। हाँ, वो एसोसिएशन इसी बात पे, मतलब उसका एसोसिएशन के पीछे जो मोटिव है, वो मोटिव यही है कि एट लास्ट में जब किसान को कोई चीज़ की रेट सही मिलती है, किसान को अगर दवाई सही मिलती है, किसान को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उपज सही मिलती है, तो वो उपज एट लास्ट में जो दुकानदार है, उसे एसोसिएट है, वो उसी को फायदा करता है। अगर किसान की उपज सही मिली, किसान को अगर उचित रेट मिली, तो किसान को उचित रेट मिलती तो उसकी जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ेगी। और जो परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो वो सीधा हमारे वेंचर को उसमें कांटेक्ट करता है। तो एफपीओ और हमारे वेंचर के बीच में ये जो तालमेल है, वो तालमेल दोनों की विन विन कंडीशन में है। उनके सही रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं हम खाद बीज में, वो उसमें, और जो किसान को रिक्वायरमेंट एफपीओ पूरी करता है, तो हम दोनों के साथ में मिलके एक दूसरे का फायदा होता है। राइट, ओके, थैंक यू सर। जी। एनी अदर क्वेश्चन? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चंस। I think there is a no question. Thank you so much, sir. थैंक यू सर। मनोहर सिंह भाटी सर, कि आपने अपना वैल्यूबल टाइम हमें दिया। और एफपीओ एग्री क्लिनिक को हम कैसे एफपीओ से कनेक्ट कर सकते हैं, उस पे आपने अपना जो प्रैक्टिकल आप नॉलेज शेयर किया हमसे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे नेक्स्ट स्पीकर से, मिस्टर संदीप कुमार मीणा जी। So please, Sandeep ji, please share your presentation and also explain that how you are implementing, means you are get benefited from SABC scheme, and you are implementing this scheme as well as your knowledge in the sector of goat farm, for the goat farming like this. हेलो जी, नमस्कार Yes, सभी को। Sandeep. जी, मेरा नाम संदीप कुमार मीणा है। मैं गोटवेदा लाइव स्टॉक फार्म से डोंगरी कला, जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, नाबार्ड और मैनेज का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस वेबिनार में बोलने का मौका दिया। साथ ही में शाश्वत सेठी विकास एसवीपी उदयपुर के संस्थापक मिस्टर मुकेश जी सुतार सर का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन से कि आज मैं यहाँ आ पाया हूँ और उनका मार्गदर्शन हमें समय समय पे मिल रहा है। और साथियों, अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि गोट वेदा की शुरुआत हमने 2024 में की थी। और उससे पहले जब मैंने शुरुआत की तो मैंने सोच रहा था कि एक फार्म करेंगे। फिर बाद में मुझे जो ऐसी एबीसी ट्रेनिंग का पता लगा, तो जब मैं ट्रेनिंग नवंबर दिसंबर हमारा बैच था 2024 का, उसमें मैं वहाँ पे उदयपुर में ट्रेनिंग लेने गया। तो वहाँ पे मेरा एक विजन सेट हुआ। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे हमें रियल में एक नॉलेज मिला, एक पूरा मार्गदर्शन मिला अच्छी टीम के साथ में कि हम क्या कर सकते हैं, और चीज़ें को समझने का मौका मिला, क्योंकि हमने रेगुलर क्लासेज वहाँ पे ज्वाइन की थी और एक अच्छी फैकल्टी है वहाँ पे हमने विजिट किया था। तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा हमें मौका मिला कि हमें पता लगा इस ट्रेनिंग का, और इस ट्रेनिंग से हमें सीखने का मौका मिला। तो हम अभी काम कर रहे हैं बकरी पालन और मूल्य संवर्धन पे, मतलब हम इथिकल गोट फार्मिंग को प्रमोट करते हुए काम कर रहे हैं। तो मैं पीपीटी के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। एक मिनट, मेरी पीपीटी शेयर हो रही है आपके पास? Yes, yes. ओके, तो एक सेकंड से थोड़ा सही से विजिबल नहीं हो रही है।
तो हम स्वास्थ्य और आजीविका के लिए बकरी के दूध को सशक्त बना रहे हैं। अबाउट गोटवेदा। गोटवेदा एक ग्रामीण स्टार्टअप है जो बकरी के दूध और उससे बने प्रोडक्ट पर काम कर रहा है। हमारा विजन है कि फार्मर एम्पावरमेंट हो और प्योर हेल्थ प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचे। हमारा मिशन है फ्रॉम फार्म टू फैमिली, प्योर गोट मिल्क प्योर लाइफ। अगर हम सर गोट मिल्क की मार्केट की बात करें, अगर वैश्विक मार्केट की बात करें तो 10.12 बिलियन डॉलर है, मतलब 86,000 करोड़ का ये मार्केट है 2024 के डेटा के अनुसार। और 2033 तक ये मार्केट 15.18 बिलियन का हो जाएगा। जो रेफरेंस हमने नीचे डाल रखे हैं वहां से हमने रिपोर्ट ली है। और दुनिया भर में बकरी का दूध का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि बकरी का दूध में क्या होता है कि लैक्टोज फ्री होता है ये। तो आजकल काफी लोगों को लैक्टोज से प्रॉब्लम होती है कि दूध से उनको एलर्जी होती है, इसलिए सब लोग अब अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं इसका। और बाकी बकरी का दूध माँ के दूध के बाद में सेकंड नंबर पे बकरी के दूध को ही बताया गया है। और हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा बकरी होते हुए भी आज भी कोई ऑर्गेनाइज चेन नहीं है बकरी के दूध की सप्लाई की, मतलब जो कंज्यूमर को दूध मिल ही नहीं पाता, जो तो भारत में सबसे ज्यादा बकरी है। और भारत से भी ज्यादा डिमांड की बात करूँ तो यूएसए, यूरोप, मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है। एक्सपोर्ट में काफी पोटेंशियल है इसकी, और अभी भारत में भी ये तेजी से मार्केट बढ़ रहा है। इंडिया इंडिया फर्स्ट प्रोड्यूसर है गोट मिल्क का, 20% पूरे विश्व का। और भारत में 148 मिलियन बकरियां है, और गोट मिल्क डेयरी सेक्टर में लगभग 2600 करोड़ का मार्केट है 2023 की रिपोर्ट के अनुसार। तो गोट मिल्क का शेयर है उसमें 4% टोटल मिल्क ऑफ इंडिया, मिल्क इन इंडिया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जैसा कि मैंने बताया है, फार्मर्स को गोट मिल्क का जो फार्मर की साइड में है, फार्मर्स को गोट मिल्क का सही दाम नहीं मिलता। इवन हमने कई जगह पता लगाया है कि जो बाड़मेर में जिन लोगों के पास 1000 बकरियां है, बाड़मेर साइड में, जैसलमेर साइड में, वहां लोग बकरी का दूध ही नहीं निकालते क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं मिलता सही रेट में। और कंज्यूमर को प्योर ऑथेंटिक गोट मिल्क प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, और क्योंकि ऑर्गेनाइज गोट मिल्क सप्लाई चेन की कमी है। हमारा सॉल्यूशन है कि किसान को एक उचित दाम मिले, तो किसान इसको सस्टेनेबल तरीके से गोट फार्मिंग करे। और अब वो दाम ऐसे मिलेगा, हम उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट, मतलब वैल्यू एडिशन कर रहे हैं प्रोडक्ट का। अभी हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनमें हम जैसे दूध, घी, पनीर, 3 प्रोडक्ट अभी हम बना रहे हैं। और अभी हम साबुन पे भी काम कर रहे हैं, बकरी के दूध की नहाने की साबुन। हम डायरेक्ट टू कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल पे काम कर रहे हैं। अब जैसे हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है गोट मिल्क, पैक किया हुआ दूध, हमारा जैसे आप बोतल देख पा रहे हो दूध की, सेम इसी ऐसी ही हमारी दूध की बोतल है। सेम हम डेली कस्टमर को लेबल लगा के, प्रॉपर कांच की बोतल होती है ये, इसी बोतल में विथ लेबल के साथ में ये बोतल जाती है कस्टमर के पास में। और सेम एक घी की आप पैकेजिंग देख रहे हो, जो मॉडल लगाया हुआ है यहाँ पे, सेम ऐसी हमारी घी की पैकेजिंग है। और पनीर भी हमारे सेम, जैसे घी का ये जार दिख रहा है आपको, ऐसे ही जार में हमारा पनीर जाता है 250 ग्राम का पैक है हमारे पास में। तो सेम डेली बेस पे हम अभी दूध हम जयपुर में सप्लाई करते हैं, और बाकी घी और बाकी प्रोडक्ट हम, पनीर और दूध केवल जयपुर में दे रहे हैं, बाकी जो घी हम पूरे इंडिया में डिलीवर करते हैं। और एक गोट मेन्योर है हमारे पास में, गोट मेन्योर को अभी हम डायरेक्ट जो बकरी का मींगनी होती है उसका हम पाउडर फॉर्म में देते हैं उसको पीस के। और जो साबुन है गोट मिल्क सोप, इस पे हमारा काम चल रहा है। और हमारे कुछ फ्यूचर प्रोडक्ट है, चीज, पनीर, बेबी फॉर्मूला, जो बच्चों के लिए जो दूध होता है। आजकल आपको पता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो पाउडर बनाते हैं, पाउडर देते हैं छोटे बच्चों को पिलाने के लिए, क्योंकि माँ इतना दूध नहीं पिला पाती आज के टाइम में, एक प्रॉब्लम रहती है ये। हमारी खासियत है हम 100% नेचुरल एंड प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि हम जिन बकरियों का दूध कलेक्शन करते हैं और हमारे जो फार्म की बकरियां है वो फ्री ग्रेजिंग पे रहती है। जो खाली जगह है, गौचर भूमि होती है जिन्हें हम बोलते हैं, वहां पे वो फ्री चरती है, वहां पे कोई रसायन नहीं है या कोई पहाड़ में चरती है बकरियां। तो वैसे एक हमारे नेचुरल प्रोडक्ट है। और हमारे प्रोडक्ट इजी टू डाइजेस्ट, क्योंकि बकरी का दूध इजी टू डाइजेस्ट होता है, इम्यूनिटी बूस्टर होता है, लैक्टोज फ्रेंडली होता है। और हम आयुर्वेदा को के साथ में, न्यूट्रिशनल बेनिफिट के साथ में हम इससे जोड़ रहे हैं, और किसान को सशक्त बना रहे हैं। गोट फार्मिंग में किसान की हम हमारे स्तर पे जो भी हेल्प हो सकती है
उस हिसाब से हम किसान को पूरा गाइडेंस दे रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन सपोर्ट कि उन्हें कैसे अब वो अपनी आय बढ़ा सकते हैं। और दूध भी हम किसान से जो वो ऑलरेडी जहाँ बेच रहे थे उससे हम 5 रुपए ये से 2 रुपए से लेके 5 रुपए तक अधिक प्राइस में हम खरीद रहे हैं दूध को। जो किसान पहले बेच रहा था उससे महंगा हम खरीद रहे हैं किसान को। और हम चाहेंगे कि इससे हम और किसान को और बेनिफिट हो। इससे अभी हम डायरेक्टली जो मेन्योर का कॉन्सेप्ट है, मेन्योर पे हम कुछ अलग तरीके से बात कर रहे हैं किसान से। अभी कुछ एक्सपोर्ट वालों से हम बात कर रहे हैं, वो हमें बता रहे हैं कि उनकी कैसी डिमांड है, उनको कितना चाहिए, कौन सी पैकिंग में चाहिए। तो अगर वो डील हो जाती है हमारी एक्सपोर्ट वाली मेन्योर के लिए, बकरी की मींगनी के लिए, तो किसान की आय एकदम से एक अच्छी जो चीज आज तक किसान के पास मींगनी वो 3,000 रुपए की जो ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है उसमें बेच रहा है, तो वहां पे फिर किसान को एक रेगुलर जैसे दूध की 10 दिन पे इनकम मिलेगी, सेम हम उसी मॉडल पे कि उन्हें बकरी की मींगनी की भी 10 दिन पे ही कीमत मिले, उसी मॉडल पे हम काम करेंगे। तो उसकी जो डेली बेस पे जो इनकम है वो बढ़ जाएगी, मंथली इनकम। तो किसान अपना आजीविका सही से चला पाएगा। क्योंकि अभी प्रॉब्लम ऐसी आ रही है कि किसान है ना कि बच्चे बेचता है, बच्चे बेचने के बाद 1 साल बाद में इनकम आती है और दूध से बेचने में उनको इतनी इनकम नहीं आ पा रही, तो उन्हें लगता है कि यार सही बिजनेस नहीं है। और फिर बच्चे का भी जो बच्चे बेचता है, किड्स बेचता है अपनी बकरियों के, उनके भी कई बार किसान को अच्छी रेट नहीं मिल पाती। तो हमारा फोकस हम उस पर भी काम करें कि किसान का, क्योंकि हमें किसान को साथ लेके चलना जरूरी है, इसके बजाय हम नहीं कर सकते ये काम। किसान को जोड़ना, उसका हित करके ही काम हो सकता है अगर हमें इससे बड़ा काम करना है तो अभी हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो फार्मर गोट वेदा कस्टमर। और रेवेन्यू स्ट्रीम की बात करें, हमारा डिटेल में डायरेक्ट टू कस्टमर D2C मॉडल है। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मॉडल में काम कर रहे हैं। और होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर एक्सपोर्ट का अभी हमारा चल रहा है, बातचीत हो रही है, अभी हम किए नहीं है। और वैसे एक्सपोर्ट हम इनडायरेक्ट किसी दूसरे की पैकेजिंग में दिए है, ऐसी बात नहीं है, एक्सपोर्ट में हमने एक बार किया है। और हमारे सारे प्रोडक्ट प्रीमियम है। हम टू सपोर्ट रूरल फार्मर्स विथ एडवांस वेटनरी केयर to build digital market access for goat product to ensure fair pricing and hygiene in goat husbandry to create premium goat milk based value added product। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हमारा जो मार्केट स्ट्रेटेजी है वो है ऑनलाइन सेल्स। हम वेबसाइट हमने अभी हमारा डोमेन खरीद लिया है और वेबसाइट को लाइव हम थोड़े ही दिनों में करने वाले हैं। वेबसाइट पे हमारा काम चल रहा है। और अमेजन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे, मीशो से हम ऑर्डर, इस मीशो पे हमारा अकाउंट एकदम लाइव है अभी। और अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी अभी पूरा काम नहीं हुआ है, वहाँ पे हमें कुछ GST सर्टिफिकेट वो लगाने हैं। तो इसके बाद में हम वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट लिस्ट कर पाएंगे, ताकि मीशो पे एनरोलमेंट ID से हमारे प्रोडक्ट अभी लाइव है। ऑफलाइन रिटेल, हमारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक स्टोर जयपुर में जो ऑर्गेनिक मार्केट लगता है वहाँ पे एवरी संडे हमारी स्टॉल रहती है। इसके साथ में ही विद्याधर नगर और वैशाली नगर, इन यहाँ पे 2 स्टोरों पे जो पुराने स्टोर है जयपुर के, वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। और हमारी जो आयुर्वेदिक सेंटर है, हम जैसे रीच कर रहे हैं वो बता रहे हैं। हम अभी टारगेट कर रहे हैं कि जो आयुर्वेदिक सेंटर है उनसे होटल में पनीर वगैरह के लिए, हॉस्पिटल्स में मेनली हमारा हॉस्पिटल्स में बात करने का रीजन है कि हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर बताता नहीं है कस्टमर को, इसलिए बकरी का दूध, डॉक्टर को तो पता है कि बकरी का दूध बढ़िया है, कस्टमर को पीना चाहिए, ये बीमारी ठीक हो सकती है। बट डॉक्टर को ऐसा भी पता है कि अगर हम कस्टमर को बोलेंगे कि बकरी का दूध पीना, तो कस्टमर खरीद ही नहीं पाएगा, कस्टमर को मिलेगा ही नहीं। तो वो चीज़ हम डायरेक्टली हॉस्पिटल वालों से बात करके हॉस्पिटल वालों को बता रहे हैं कि हम प्योर चीज़ दे रहे हैं, आप हमारे सैंपल देखो। हम हॉस्पिटल को कन्विंस कर रहे हैं कि हॉस्पिटल वाले, क्योंकि हम हॉस्पिटल को कन्विंस करेंगे तो कस्टमर के पास हम अपने आप ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि फिर डॉक्टर ही हमें बताने लग जाएगा उनको। हम हमारे विजिटिंग कार्ड वगैरह बनवा लिए हैं। और बेबी केयर फॉर्मूला भी हमें कुछ एक्सपर्ट की मदद से बनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का मामला है और एक्सपोर्ट का बिजनेस। और जैसे कुछ हमारी फोटोग्राफ है यहाँ पे, जैसे ये दूध की है, हमारे जो मेन्योर का 1 kg की पैकेजिंग है, और ये घी की पैकेजिंग है। और ये साथ में हम जो PNB बैंक है, इनका कुछ ये ट्रेनिंग करवाते हैं। इनके कुछ परसेंट, इनको कोई भी बैंक होता है, कुछ बैंकों में उनको कुछ परसेंट खर्च करना होता है सामाजिक कार्यों के लिए। तो हम उनके साथ में जुड़ के किसानों को ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं बकरी पालन की। 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, इसमें सर्टिफिकेट भी होता है। और कोई किसान अगर लोन लेना चाहे तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से वो मुद्रा लोन ले सकता है 50,000 से, या उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से। इस ट्रेनिंग के माध्यम से वो 1 महीने के बाद में सर्टिफिकेट के माध्यम से लोन भी ले सकता है।
जो हमारे लोकल फार्मर्स हैं उनके लिए हम ये काम कर रहे हैं अभी। तो कुछ हमारे वीडियो है, जैसा कि हम ऑनलाइन जब हमारा ऑर्डर आता है तो हम कैसे उसको डिलीवर करते हैं, वो इसमें बताया गया है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये हमारी एक वीडियो पुराना है, बाकी अभी हम थोड़ा इसको और बढ़िया पैकेजिंग कर दिया है इसमें। और ये थैंक यू मैसेज होता है कस्टमर को, कि हम किसानों जो भी कस्टमर घी खरीदता है उसके पास में एक थैंक यू मैसेज आता है कि आप सपोर्ट कर रहे हो लोकल कम्युनिटी को, लोकल फार्मर्स को। इसमें सब कुछ लिखा होता है। और साथ ही हमारा पूरा सिस्टम ऑनलाइन है। हमारा रिकॉर्ड भी हमारा लैपटॉप में गूगल शीट, स्पाइडर शीट, एक्सेल में ही मेंशन होता है। मैनुअली हम कागज कॉपी में कुछ भी मेंशन नहीं करते। विनय सर, आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है ना? यस यस आ रही है। वीडियो आई थिंक वीडियो का वॉइस नहीं आ रहा है, उसमें नहीं होगा शायद। देखिए, जो जयपुर में ऑर्गेनिक मार्केट है, यहाँ पे ऑर्गेनिक मार्केट वाले जो भी मेंबर होते हैं, इनका एक पूरा ग्रुप होता है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल सब चेक करते हैं कि क्या वाकई में जो बंदा हमारे को यहाँ पे स्टॉल लगा रहा है वो पूरा ऑर्गेनिक तरीके से काम कर रहा है क्या। पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद में वो लोग खुद ही हमें जो स्टॉल प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि आप स्टॉल देख पा रहे हो, तो ऐसे हमें स्टॉल, और यहाँ पे जितने भी किसान हैं उनके सब ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो ऑर्गेनिक वाले कस्टमर होते हैं वो जुड़े होते हैं, वो आते हैं यहाँ पे, और यहाँ से डायरेक्टली वो रह जाते हैं। इसके बाद में जो टोटल ऑर्गेनिक फोटो में आप देख रहे हो, वो स्टोर होता है। जो भी जितने भी यहाँ किसान होते हैं उनके प्रोडक्ट वहाँ पे उस स्टोर पे अवेलेबल होते हैं। मतलब संडे को 7 बजे से लेके 10 बजे तक हम सब किसान वहाँ पे स्टोर लगाते हैं अपनी। और बाकी और दिन संडे के अलावा किसान, कोई भी कंज्यूमर है, कस्टमर, वो इस टोटल ऑर्गेनिक नाम से जो स्टोर है यहाँ से हमारे प्रोडक्ट ले सकता है। जैसे मैंने वहाँ पे स्टोर लगाई और मुझे कस्टमर मेरे को डायरेक्ट मिला, और उनसे मैंने ऑर्डर ले लिया कि सर आपको कितना डेली दूध चाहिए। तो वो जैसे हमारे हमारे को ऑर्डर देते हैं, और दूसरे दिन वहाँ पे उस स्टोर पे जितने ऑर्डर होते हैं, जितनी दूध की बोतल होती है, वो वहाँ पे पहुँच जाती है और वहाँ से कस्टमर ले लेता है। इसके साथ में जयपुर में ऑनलाइन की सुविधा है, पोर्टर, रैपिडो, उबर ऐसे। तो जो कस्टमर होम डिलीवरी चाहते हैं तो उसको हम पोर्टर के माध्यम से उसके डायरेक्ट घर पे भी होम डिलीवरी दे देते हैं। उसका जो चार्ज रहता है वो कस्टमर वहन कर लेता है। नहीं तो अगर कस्टमर डायरेक्ट स्टोर से लेना चाहे तो वो स्टोर से भी ले सकते हैं। तो दोनों सुविधा उपलब्ध है कस्टमर के लिए। ये हमारा फील्ड का वीडियो है, जैसे हम दूध में कलेक्शन करते हैं उसका। सर वीडियो प्ले हो रहा है ना? यस यस। अगर आप में से कोई भी हमारे साथ में जुड़ना चाहे तो हमारे नंबर है, और हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है gotweda.in, यहाँ पे हमारे रेगुलर अपडेट होते हैं। जो भी हम काम कर रहे होते हैं उस पर हम रेगुलर बेस पे हमारे रील डालते रहते हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे साथ में और भी लोग जुड़े, और जो नए युवा लोग हमारे साथ में जुड़े, क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ा है और इसमें मतलब और लोगों का साथ चाहिए। अगर इसमें हमें सही तरीके से काम करना है तो जितने ज़्यादा लोग होंगे ना, तो इससे हम ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर पाएंगे। क्योंकि अभी कुछ भी मार्केट हम कवर नहीं कर सकते अकेले, काफ़ी सारे चैलेंजेस है इसमें। और क्योंकि सप्लाई चेन का इशू है, तो बहुत सारे चैलेंज है। इसलिए कोई भी अगर हमसे जुड़ना चाहे
तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर से हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर, आप लोगों ने इतने पेशेंसफुली हमें सुना, धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल हो तो बता दीजिए। यस, थैंक यू संदीप जी, आपने अच्छा इलोबरेट किया कैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं गोट वेदा, और स्पेशली मिल्क, जो गोट मिल्क है उसको। किसी पार्टिसिपेंट्स का कोई क्वेश्चन है क्या, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है एक्चुअली, कौन सा ब्रीड आप यूज करते हैं, कौन से ब्रीड का मिल्क आप सेल करते हैं जनरली? जी, अभी हम जयपुर में जो हमारे जो गुज्जर कम्युनिटी के लोग हैं, मोस्टली दूध हम उन्हीं से कलेक्शन कर रहे हैं, और उनके पास गुजरी और सिरोही नस्ल की बकरियां हैं। ओके, और एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? संदीप जी, मेरे कुछ क्वेश्चंस है एक्चुअली। अभी जी तक आप सर। कितने फार्मर्स, क्योंकि आप आपके यहाँ कितना गोट गोट है, जो प्रोडक्टिव गोट्स है, और कितने फार्मर्स से आप अच्छे मतलब जुड़े हुए हैं जिनसे मिल्क आप डेली बेसिस पर प्रोक्योर करते हैं, किस रेट में उनको प्रोक्योर करते हैं आप, और ये मार्केट में किस रेट में आप बेचते हैं? तो थोड़ा इस पे जी मुझे थोड़ा हाईलाइट दीजिए। प्लस ये मिल्क जो आप सेल करते हैं, क्योंकि पैक करके आप सेल करते हैं, तो इसका सेल्फ लाइफ कितने टाइम का होता है? सो जी। इस पे थोड़ा मुझे आप शेयर कीजिए कुछ। ओके, तो सर बात करूँ कि हमारे साथ में अभी अब तक कितने किसान जुड़ सके हैं। अभी हम टोटल 100 प्लस फार्मर को हमारे साथ डायरेक्टली जोड़ चुके हैं, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। इसके साथ में अभी जो मिल्क प्रोक्योरमेंट हम कर रहे हैं, अभी मिल्क प्रोक्योरमेंट के लिए हमारे पास में 20 जो किसान है, वो हमारे उनसे हम दूध ले रहे हैं डेली बेस पे। और तो बट उनमें कुछ किसान के पास में अभी इस टाइम पे उनकी बकरियां जैसे प्रेग्नेंट थी, तो वो अभी दूध बना सप्लाई बंद हो गया उनसे। तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं कि दूसरे फार्मर से हम दूध ले रहे हैं ना। तो अभी क्या थोड़ा सप्लाई का इशू चल रहा है इस टाइम पे, तो क्योंकि जिसके पास 100 बकरियां हैं उनके पास में भी दूध नहीं है। तो अभी टोटल बकरियों की बात करें तो हम 2500 बकरियां हो गई हमारे नेटवर्क में। 2500 बकरियां जिन फार्मर से हमने जुड़ा है। और हमारे खुद के फार्म पे सर अभी 20 बकरियां ही है, और 50 बकरियां अभी ऐसी एबीसी से हमने फाइल लगाई है। और कुछ ही दिनों में हम वो लोन पास होते हैं, हम बकरियां हमारे फार्म पे और बढ़ाएंगे। बाकी हमारे हमने एक जो एरिया कवर किया है पूरा, जैसे हम जयपुर को टारगेट कर रहे हैं, तो पूरा एक रूट है, उस रूट पे हम सबसे कनेक्ट कर चुके हैं। हमने जैसे जयपुर में एक तहसील है चोमू, चोमू से लेके किशनगढ़ रेनवाल, और इधर जोमनेर का आपने आप जानते होंगे, जोमनेर से लेके जयपुर, ये पूरा जो रूट है, इस पे हम हर एक किसान से रेगुलर बेस पे बात कर रहे हैं, और उन्हें हम बता रहे हैं। अब कुछ किसान का भी इशू होता है, क्योंकि पहले उनको कई लोगों उनके साथ फ्रॉड भी हो चुका। अब जब मार्केट में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि पहले कोई आया था, क्योंकि कई डेयरी पहले आए और काम करके बंद कर दिया कई लोगों ने। तो वो लोगों ने उनको पेमेंट नहीं दिया, क्योंकि ऐसे ही किसी ने बताया होगा। तो वो चीज़ के लिए हम उनको कन्विंस कर रहे हैं कि आप हमसे जैसे चाहे पेमेंट ले सकते हो। अगर आपको लगता है 10 दिन से पेमेंट लेना है, 10 दिन से लो। अगर आप चाहते हो कि आप डेली लो, तो आप अकाउंट नंबर पे हम ऑनलाइन करते हैं पेमेंट भी हमारा। और किसी किसान के पास सुविधा नहीं है तो हम कैश में भी देते हैं। बाकी किसान को हम पूरा ओपनली कहते हैं कि आप जैसे चाहो हमसे पेमेंट ले सकते हो, 1 डे पे, 5 डे पे, 10 डे पे, है ना। किसान, क्योंकि किसान का ट्रस्ट बनाना बहुत जरूरी है। और हम खुद ही किसान के साथ में उनको वैक्सीनेशन का जो होता है, वो हम ऐसे नहीं कहते कि हमारे फंड से हम उन्हें वैक्सीनेशन दे रहे हैं। बाकी हम जो लोकल वेटनरी क्लिनिक, वो जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट के, वहाँ पे जो वेटनरी वाले ऑफिस में वहाँ पे वैक्सीनेशन होती है, वो मतलब एक स्टोर रहती है उनके पास, वहां से हम लेके किसान को देते हैं। दूसरे मतलब हो सकता है उस किसान जिस एरिया में किसान रहता है, वहाँ पे जो नजदीकी हॉस्पिटल है वहाँ पे वो वैक्सीन नहीं है, तो हम दूसरी जगह से भी वहाँ के उनको लेके वहाँ से प्रोवाइड करवाते हैं, अगर एक्स्ट्रा कहाँ पड़ी है तो। क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन वेटनरियन हूँ, तो हमारे जो वेटनरियन से भी अच्छा लिंक है। और वेटनरियंस का बताऊँ तो मैं पूरे राजस्थान में से हर जिले में मेरा वेटनरियन से कनेक्टेड हूँ मैं। और पूरा एक नेट वेटनरियंस का भी हमने ग्रुप बनाया है, क्योंकि हम जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, तो हम चाह रहे हैं कि हम वेटनरियंस के थ्रू ही जाए। अगर हमें कुछ नए जिले में प्रवेश करना है कि वहाँ पे, जैसे अभी बता रहा था मैं आपको जैसलमेर में, तो जैसलमेर में एक गवर्नमेंट एलएसए है, लाइव स्टॉक असिस्टेंट। उनसे ही हमने बात की है कि आप बताइए अब वहाँ पे क्या मार्केट है, कितनी बकरियां है लोगों के पास में, और वो दूध का क्या कर रहे हैं।
अभी उनकी क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें हम सिर्फ उन्हीं से डेटा ले रहे हैं। तो हमारा ऐसे हर जिले में हम नेटवर्क बना रहे हैं, क्योंकि वेटनरियंस होता है वो उसका हर जगह वो किसान से मिलता रहता है, उसको ग्राउंड की हकीकत पता होता है। अब डायरेक्ट ऐसे हम किसी बंदे को हायर करेंगे वहां पे तो वो इतनी हमें जानकारी नहीं दे पाएगा। बाकी जो वेटनरियंस वाला मॉडल इसीलिए हम काम लेते हैं कि वो फार्मर से मिलता भी है रेगुलर बेस पे, और उसे किसान की बात पता होती है, और किसान वेटनरियंस की बात मानता भी है। अगर क्योंकि किसान जो वेटनरियन होता है उसको भगवान मानता है कि ये भाई उसका पशु का ट्रीटमेंट करता है, तो वो उसके लिए सब कुछ है, वो जो बोलता है वो उसकी बात मानता ही है। हाँ, तो राइट आपका राइट अभी हम किसान से जो फैट पे दूध जा रहा है उससे जो भी फैट आता है उससे 3 रुपए या किसी किसान को 5 रुपए, वो दूरी के बेस पे हम तय करते हैं। 5 रुपए तक हम दे रहे हैं अभी एक्स्ट्रा। और फिर अभी हम जैसे हमारा मतलब पेट्रोल वगैरह और खर्चा मिला के लगभग 50 रुपए पड़ जाते हैं। और अभी हम दूध बेच रहे हैं, रिटेल में बेच रहे हैं 250 रुपए kg, विथ पैकेजिंग में। हमारी कांच की बोतल होती है, उस पर लेबल होता है, और उस पर हमारी डिलीवरी चार्ज वो रिटेल पे हम वो अलग होता है। बाकी 250 रुपए में कंज्यूमर का है, फिक्स प्राइस है। घी हमारा है 4000 रुपए kg, 250 ग्राम 1000 रुपए का। पनीर हमारा है 1600 रुपए kg, 250 ग्राम 400 रुपए का। और पनीर पनीर की सबसे अच्छी बात है, जो कस्टमर हमारा पनीर ले रहा है वो पनीर उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। उसे रियल में घी का कस्टमर का फीडबैक है, क्योंकि घी तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि घी क्यों क्या डिफरेंट है। क्योंकि घी हेल्थ के लिए बकरी का घी बेनिफिशियल है, बट उसे रियल में तुरंत खाने के बाद में अभी समझ में नहीं आ रहा कि ये एक्चुअल है क्या चीज। बट पनीर में ऐसा है, कोई भी बकरी का पनीर खाता है, भले वो 250 ग्राम अकेला एक बार में खा जाओ, उसके पेट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और 250 ग्राम अगर गाय या भैंस का खाओ पता लग जाएगा कि क्या डिफरेंट है। तो पनीर का इतना फास्टली पता लगता है कि बहुत हल्की होती है, तो आराम से मतलब पेट में कुछ खाया भी है कोई दिक्कत नहीं है, और न्यूट्रिशनल तो उसकी वैल्यू है ही। तो पनीर का हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, और हमारे लिए भी पनीर सेल करना थोड़ा अच्छा मार्जिन है। राइट राइट और घी का हम ऐसे कर रहे हैं कि 1 मिनट और बोलना चाहूंगा सर मैं। घी का हम यस घी अभी डायरेक्ट घी सेल कर रहे हैं कि किसके बाद में हम घी के भी कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे बकरी के। जैसे सर्दियों में आमतौर पे लोग लड्डू पसंद करते हैं, तो अब की बार हम सर्दियों में बकरी के घी के लड्डू भी बनाएंगे, और जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है उन्हें वो लड्डू ऑफर करेंगे। क्योंकि हम दूध से कस्टमर को टारगेट करते हैं, बाद में उसके क्रॉस सेलिंग करते हैं। ओके और एक और चीज जानना था मुझे, ये ऑनलाइन जैसे आप बोल रहे थे ना, अभी आप अमेजोन फ्लिपकार्ट मतलब मीशो पे तो अभी आप अवेलेबल है, आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है, हाँ तो जी, इसमें गोट वेदा करके ही या किसी आपको प्रोडक्ट बेच रहे हैं? नहीं सर, गोट वेदा के नाम से ही है हमारा। और गूगल पे हमारी प्रेजेंट बहुत अच्छी है, गोट वेदा लाइव स्टॉक फार्म कोई भी सर्च करेगा कहीं पे भी तो पूरा हमारा ही आएगा। गूगल पे अगर कोई भी करते हो तो लगभग पूरा 3-4 जितने भी पेज आएंगे वो सारे हमारे ही दिखेंगे। और जस्ट डायल का भी प्लान ले रखा है हमने, जस्ट डायल पे भी हमारा गोट वेदा लाइव स्टॉक फार्म के नाम से एक्टिव है प्लान। ऑनलाइन प्रेजेंट हमने पूरा है। ओके ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन? और किसी पार्टिसिपेंट्स का अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। सो एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा हमारे तीनों स्पीकर्स का कि उन्होंने अपना वैल्यूबल टाइम हमें दिया। मिस्टर मुकेश सुतार सर, नोडल ऑफिसर, मिस्टर मनोहर सिंह भाटी सर फ्रॉम उत्तम फार्म जैसलमेर, एंड मिस्टर संदीप कुमार मीणा फ्रॉम गोट वेदा जयपुर राजस्थान। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा हमारे पार्टिसिपेंट्स जो कंटिन्यू हमारे साथ इनएक्टिव मोड में बट ज्वाइन थे, सो उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। और हमारा सतत प्रयास रहेगा मैनेज का भी, कैट टीम का भी, कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके एग्रीप्रेन्योर्स को अपना जो स्टोरी है या जर्नी है, जो भी प्रॉब्लम फेस से लेकर कैसे उन्होंने अपना स्टार्टअप या जो भी वेंचर है उसको ग्रो किया, आज किस स्टेज पे वो उसको रन कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में उसको किस स्केल पे वो बढ़ाना चाह रहे हैं, डाइवर्सिफाइड मोड में लेना चाह रहे हैं या
उसी को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम कंटिन्यूअसली हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स है, रिसर्च स्कॉलर है, फैकल्टीज है, एटीआईज है, उनके बीच में शेयर करते रहे हैं। So once again, thanks to all to be the part of this webinar. Thank you all. थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you.